So namaste, good morning students, welcome to M Science. So today we are going to learn the remaining part of our third chapter called as the synthetic fibers and plastics. In this video we are going to learn about the different properties of plastics as well as the problems or the disadvantages which are associated with the plastics and how to overcome that plastic, that means how to reduce the pollution which is caused by the plastics. Okay, so all these things we are going to learn in this video. So let's start learning about the properties of the plastic first. Okay, then see, today we are going to learn about the properties of some plastics. You know that मतलब जो कुछ भी properties जो कुछ भी plastics के बारे में अब तक हमने पढ़ा है, you know that we have learn about the different plastics are there, that LDPE was there, HDPE was there. So what are these LDPE and HDPE? We know that low density polyethylene, right? Low density polyethylene, and HDPE क्या होता है? That high density polyethylene, right? About the PVCs also we have learned, from which that our PVC pipes are made from. So that are, you know, that PVC, what is the full form of that PVC? It is polyvinyl chloride, right? Yeah, yes, very good. Then we have learned about the PS and then PU. What is the PS and PU? That PS is the plastic which is called as the polystyrene. PU is the polyurethane, right? Then also we have learned about the PTFE, right? So ये PTFE क्या था? That was polytetrafluoroethylene, right? तो इनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, but now some common properties these plastics have there. So we are going to discuss now about some common properties of these plastics. Okay, so just focus on the properties now first. So the पहली property है weather resistance. You know that why we are, for example, nowadays, you know, for example, our shirts are made from, you know, the clothes are made from the plastic fibers. Everything in around us, you know that, for example, I have these pens. So you can see there are different colors of pen are here, that red, blue and green are also there. So these different pens are here. That means ये जो plastics है, ये plastics हम use कर रहे हैं. So you can see there, वो जो plastics होते हैं, most of the plastics are weather resistant. That means they are not affectable by any weather condition. That means the humidity or hot sun or cold is there, nothing is affecting on that. मतलब क्या होते हैं, वो वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, वो वेदर की कोई भी सिचुएशन का उन पर कोई भी असर नहीं होता है. एंड दैट्स व्हाई, यू नो, दे हैव द फर्दर प्रॉपर्टीज एज वेल एज दे आर वेदर रेजिस्टेंट. वेदर रेजिस्टेंट नहीं है, यू नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द वेदर रेजिस्टेंट, दैट मींस दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. मतलब उनका डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं. एंड यू नो, ये एक उसका बैड इफेक्ट भी है, या हम उसको कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का. बट एज दिस प्लास्टिक्स आर वेदर रेजिस्टेंट, वी आर यूजिंग देम फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट? Right? Yeah. Then next one is that, yes, next is what? That chemical resistant. That means some plastics are there, we can say not some, most of the plastics are there, they are chemical resistant. That means कोई भी chemical, whether it will be the acid or it will be the base or you know that basic हो या that alkaline or acid हो, कोई भी substance का उन पर कोई भी असर नहीं होता है. इवन द वाटर इज नॉट अफेक्टिंग ऑन दैट. मतलब कोई भी न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस उन पर कोई भी असर नहीं कर पाते. दैट मींस वी कैन से दैट प्लास्टिक्स आर केमिकल रेजिस्टेंट. एंड यू नो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू स्टोर सम केमिकल्स इन प्लास्टिक्स एज वेल. बहुत से केमिकल्स होते हैं हम प्लास्टिक बॉटल में सेव कर पाते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर केमिकल रेजिस्टेंट. कोई भी केमिकल का उन पर असर नहीं होता है, नॉट एसिड नॉट बेसिस. ओके, बट इफ वी आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देन some, you know that जो polymers होते हैं, कोई मतलब कोई से plastics होते हैं, they can be affected. Okay, so they also have the exception there. Now see, toughness, ये जो property है प्लास्टिक की, toughness, you know that इसमें क्या होता है, मतलब toughness किस तरह की होती है, you know that they can tolerate too much pressure on them, right? वो बहुत सारा pressure उन पर ले सकते हैं. And that's why we are using so many, you know, plastic ropes are there, the fibers which are made from the plastic. Or we can say any synthetic fiber is there, that ropes we are using for you know that bungee jumping and everything we can say. तो ये जो आता है ना toughness, मतलब उनमें एक टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. they can tolerate too much pressure on them. मतलब ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, they are tough as compared to the natural fibers. जो कुछ भी नेचुरल फाइबर्स हम यूज करते हैं, उनसे ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द प्लास्टिक्स आर देयर, दे हैव द टफनेस इन देम. मतलब आप देखो ना, आपको अगर कहा जाए कि आपको एक स्की बोर्ड बनाना है, राइट? तो स्की बोर्ड के लिए आप वुड यूज करोगे या फिर आप प्लास्टिक, जो लाइट वेट प्लास्टिक होगा वो यूज करोगे. सो व्हाट विल यू यूज? संकल्प? या बेसिकली वी विल यूज द लाइट वेट प्लास्टिक. बिकॉज व्हाई? बिकॉज वुड जो होगा उस पर जो मॉइस्चर होगा, उसका असर होगा, वो खराब हो जाएगा, उस पर फंगल अटैक होगा. ओके, ठीक है, मतलब कोई भी चीज हो सकती है. बट वुड जो होगा वो टफनेस, मतलब वो टफनेस ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगा एज कंपेयर टू द प्लास्टिक. मतलब प्लास्टिक्स इज मोर टफ रेदर देन द वुड, राइट?
या सो इन दैट वे वी कैन से टफनेस जो होती है ये एक प्रॉपर्टी प्लास्टिक की गुड प्रॉपर्टी है. देन इजी मोल्डिंग, यू नो दैट व्हाट इज दिस इजी मोल्डिंग? बिकॉज जस्ट टेल मी, फॉर एग्जांपल नाउ वी आर ऑब्जर्विंग such पेन्स आर हियर, देन यू नो द बर्ड्स आर हियर, ईयरबड्स आर हियर. सो वी कैन सी दैट ये जो अलग अलग चीजें आपको मिल रही है कि जिससे प्लास्टिक बने हुए हैं, दैट मीन्स ये इतने अलग अलग शेप्स में इसको हम, यू नो दैट मीन्स वी कैन कन्वर्ट द प्लास्टिक इनटू मोल्टन प्लास्टिक इनटू द एनी शेप, एनी डिजायर्ड शेप ऑफ अस, यू नो. मतलब कोई भी शेप का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनना है तो इजीली वी कैन मोल्ड इट. मतलब हम उसको कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप उसको दे सकते हैं. वी कैन गिव एनी डिजायर्ड शेप टू द प्लास्टिक, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स ऑफ आर्टिकल्स इन अवर होम होम ऑल्सो, यू नो दैट. बिकॉज हमारे घर में आप देखोगे कितनी सारी चीजें जो प्लास्टिक से बनी होती है. इवन योर कंपोस्ट बैग इन योर स्कूल बैग, यू नो दैट आपका, देन अवर कंपोस्ट बॉक्स इज ऑल्सो, यू नो, विच इज मेड फ्रॉम द प्लास्टिक. That is also of the different shapes are available, which you know in your childhood I think you have played with the compost box which have the different shape, like the car वाला होता था, then dragon वाला होता था, right? तो ये क्या होते थे, ये जो कंपोस्ट बॉक्स है वो प्लास्टिक से बने हैं. तो प्लास्टिक्स के अभी ड्रैगन वाला शेप है तो फिर कार का किस तरह बन गया? वी कैन, दैट मीन्स वी आर कमिंग टू नो फ्रॉम दिस पॉइंट दैट प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक को हम कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको कोई भी डिजायर्ड शेप हम दे सकते हैं, राइट? जस्ट एज्यूम दैट ना, हमारे घर में देखो किचन वेयर होता है तो किचन वेयर के हैंडल्स बने हैं प्लास्टिक से. देन आपके खिलौने होते हैं तो खिलौने में आप देख सकते हो टॉयज में कितने सारे अलग अलग होते हैं, यू नो दैट वी आर बाइंग द कार्स फ्रॉम द शॉप. देन टॉय शॉप जो होता है उससे हम कार खरीदते हैं, तो कार अलग अलग शेप में आती है. कार में कुछ बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि BMW आ रही है, वो आपको वहां पर मिल रही है, फरारी मिल रही है, देन सम JCB मिल रहे हैं, ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें प्लास्टिक से बनी है. तो इन प्लास्टिक को इतने अलग अलग शेप्स में हम मोल्ड कर सक रहे हैं. दैट्स व्हाई द टॉयज आर अवेलेबल टू अस. दैट मींस वी कैन से प्लास्टिक कैन बी मोल्ड इनटू एनी डिजायर्ड शेप. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू इजी टू मोल्ड, मतलब वो इजी होता है मोल्डिंग के लिए, राइट? नाउ सी, या इट्स क्लियर आई थिंक. नाउ इट्स कलरिंग. ओके, अब ये कलरिंग वाली प्रॉपर्टी है. अब ये कलरिंग क्या होगा? मतलब यू कैन सी, आई हैव शोन यू बिफोर दिस आल्सो, दिस थ्री डिफरेंट पेन्स आई हैव हियर, राइट? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर है, देन ब्लू, देन रेड. तो ये सब तो प्लास्टिक से ही बने हैं ना, राइट? तो प्लास्टिक को अलग अलग कलर्स भी हम दे सकते हैं. दैट मीन्स दिस प्लास्टिक्स आर इजी टू कलर, राइट? हम उसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं, बिकॉज बेसिकली जो पॉलीमर्स होते हैं ना प्लास्टिक के, मतलब जो मोनोमर से जो पॉलीमर्स बने होते हैं, दे आर कलरलेस और व्हाइट इन कलर. ओके, फिर हम उसमें कुछ कलर्स ऐड कर कर उनको अलग अलग कलर्स दे सकते हैं. यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक आल्सो अवेलेबल हियर. तो ये बेसिकली जो कलर होते हैं, ये कलर हम प्लास्टिक को भी दे सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ डिफरेंट कलर टॉयज टू अस, डिफरेंट कलर क्लोथ्स वी हैव, राइट? ये जो फैब्रिक्स होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, उनको अलग अलग कलर दे सकते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव अ मल्टी कलर्ड क्लोथ्स नाउ, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक की ये जो प्रॉपर्टी है इजी टू कलर, ये अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट प्लास्टिक इज डिफरेंट देयर. नाउ सी, नेक्स्ट इज लाइट. तो ये लाइट क्या होगा? दैट मीन्स दे आर लाइट इन वेट. प्लास्टिक जो होते हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट, you know, as compared to the we can say that organic fibers, or we can say you know that नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में ये जो फाइबर्स होते हैं या फिर प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि आपने देखो आपके पास एक कंपोस्ट होगा, राइट? जो मेटल से बना हुआ है, मेटेलिक प्लेट से, आयरन से बना या स्टील से बना हुआ है. एज कंपेयर टू दैट अगर आपके पास एक प्लास्टिक से बना हुआ कंपोस्ट होगा तो it will be lighter than, right? And is, you know, one example, best example can we take, you know, for example something is want to float on the water, so what should be the property of it first? वो कैसा होना चाहिए अगर उसको वाटर में फ्लोट करना है? या इट शुड बी लाइटर, राइट? वो हल्का होना चाहिए ना, इट शुड बी लाइट इन वेट. तो यू नो दैट, हाँ, तो उसकी डेंसिटी लो होनी चाहिए. एंड डेंसिटी किसकी लो होगी? जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइटर होता है. तो यू नो दैट अगर आपको कहा जाए कि आपके पास दो मेटेलिक शीट्स, मतलब एक मेटेलिक शीट उन्होंने दिया है जो एक एल्यूमिनियम से या फिर आप बोल सकते हो कि स्टील से बना हुआ है या आयरन से बना है, और दूसरा बना है आपके पास प्लास्टिक का. ओके, तो आप कौन सी वाली शीट को यूज करोगे? अगर दोनों की ड्यूरेशन प्रॉपर्टी सेम है, उन पर कोई असर नहीं होने वाला है, तो आप कौन सा वाला यूज करोगे फ्लोटिंग के लिए? बेसिकली हम क्या करेंगे? प्लास्टिक. सो व्हाई? बिकॉज इट विल बी फ्लोट इजीली एज इट्स लाइट इन वेट. कोई भी चीज, एंड यू नो दैट फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऐसे ही, एक मेटेलिक पार्ट है और एक प्लास्टिक का पार्ट है, मतलब आपको मोल्टन मेटल और मोल्टन प्लास्टिक दिया गया है और आपको बोला गया है कि आपकी जो खेलने की बैट है, यू नो दैट वी आर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट नाउ, एंड यू हैव टू मोल्ड द ब्लैट फ्रॉम बैट from the metallic molten metal is there and molten plastic is there, so which one will we use? Plastic, obviously. You know why? Because प्लास्टिक जो होगा वो लाइट इन वेट होगा, तो आपको खेलने में आसानी जाएगी, राइट?
एंड इट इज टफ एज द मेटल एज वेल, वो टफनेस भी है, दैट वी हैव लर्न ऑलरेडी, वो टफ भी है एंड लाइट इन वेट होगा, तो क्या होगा, वी विल इजीली चूज दैट plastic there. That's why it is said to plastics are light in weight. That means the plastic articles are easy to carry anywhere. That's why most of the articles nowadays are made from the plastics. Okay, then next property है उनकी insulation. नया वाला जो property आपको दिखाई दे रहा है insulation. What do you think? ये insulation क्या होगा? According to you, what is the insulation? Yeah, it is resistant to the heat and electricity, right? वो क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट कर रहा है. बट यू नो मोस्ट ऑफ द थर्मोसेट प्लास्टिक जो होते हैं ना, थर्मोसेट प्लास्टिक, नॉट द कौन सा वाला दूसरा टाइप है, थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक. तो आप अगर थर्मोसेट प्लास्टिक यूज करोगे तो वो वाला जो प्लास्टिक होगा वो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंट होता है हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट? या इट इज यूज्ड इन थर्मस फ्लास्क. बेसिकली ये आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इंसुलेशन जो है, तो इंसुलेशन का प्रॉपर मीनिंग आपको पता है कि इंसुलेशन इज व्हाट, इट्स अ रेजिस्टेंट टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, राइट? या इट्स अ रेजिस्टेंट टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से. सो इंसुलेशन जो होता है बेसिकली वी आर इजीली सी दैट, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक वायर दिखाई दे रहा होगा, दैट कोई भी, ये जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये जो वायर है हेडफोन का भी, इस वायर के अंदर क्या होंगे, बेसिकली इसमें ऑप्टिक फाइबर्स या तार होंगे इसमें, राइट? मेटल से बने हुए. बट अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट कर रहे हो कोई भी वायर से, दैट, तो आपके घर में आपने देखा होगा ब्लू कलर्स वायर्स आर देयर, ग्रीन, रेड, डिफरेंट कलर्स वायर्स वी हैव देयर. तो वो जो कलर होते हैं वायर के, तो वो कलर्स एक्चुअली प्लास्टिक को दिए गए, नॉट टू द मेटल वायर विच आर अवेलेबल इन दैट, राइट? जो उस प्लास्टिक के केसिंग में जो मेटल वायर होते हैं उसको वो कलर नहीं दिए होते, प्लास्टिक को कलर दिए होते. तो बेसिकली वो कलर दिखाने के लिए प्लास्टिक को वहां पर यूज नहीं हो रहा है. इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, राइट? That means ये जो प्लास्टिक होते हैं they are creating the insulation over that metallic wire which are conducting the electricity through the wire, right? Yeah, so now see, yes, very good. So insulation से आप अच्छे से वाकिफ हो. Even you can say not only the electric conducting wires are there, for example our kitchen wares, that हमारे जो cookwares होते हैं घर में, जो that cookers होते हैं, या फिर bakelite is in there. Why that bakelite जो होता है वो कहाँ पर यूज कर रहे हैं, इन दैट हैंडल्स. और दूसरा जो आता है मेलामाइन, सो दैट मेलामाइन होता है, उसका भी एक इंसुलेशन का यूज कर रहा है. मेलामाइन आपको पता है इट इज यूज्ड इन द फायरमैन्स ड्रेस, राइट? उस फायरमैन के जो ड्रेस होते हैं उन फायरमैन के ड्रेस पर कोटिंग चढ़ा होता है मेलामाइन का, राइट? वो थर्मोसेट प्लास्टिक होते हैं बेसिकली विच आर रेजिस्ट टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. मतलब हम देख सकते हैं कि फायरमैन के ड्रेस होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग लगा है मेलामाइन का, तो वो उन्हें फायर से प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स इंसुलेशन क्रिएट कर रहा है अगेंस्ट द फायर. So we can say whenever this plastic is applied to the conducting electric wire, which are, that means the metallic wire is there, then if that is coated on the fireman's dress, so in this different situation we can say they are creating the insulation against the electricity as well as against the fire, right? Yeah, so this is the property of that plastic, is that plastics are insulation, are creating the insulation there. Then inflammable, नया वाला जो प्रॉपर्टी दिया है वो है इनफ्लेमेबल. तो ये एक हम कह सकते हैं कि यूजेबल भी है, बट दिस इज हार्मफुल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक. वो एक हार्मफुल भी है, दैट वी आल्सो कैन इंक्लूड इन दैट नॉट दैट नॉट बायोडिग्रेडेबल. वो भी एक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो विच इज हार्मफुल प्रॉपर्टी एक्चुअली. ओके, तो देखो इनफ्लेमेबल क्या होते हैं अभी. सो इनफ्लेमेबल मीन्स दे कैन बर्न. ओके, वो बर्न होते हैं, जलते हैं, दैट. एक्चुअली प्लास्टिक्स आर व्हाट, प्लास्टिक्स आर फायर रेजिस्टेंट, वो फायर को रेजिस्ट करते हैं. बट whenever we are continuously hitting them, so what will happen, they will melt first. वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होंगे सबसे पहले, तो है ना. दैट फॉर एग्जांपल पॉलिथीन बैग्स होते हैं तो बहुत से लोग उनको जला देते हैं. जलाने पर भी वो एक पॉइजनस सब्सटेंसेस या गैसेस जो होते हैं वो एयर में रिलीज करे, तो एयर पॉल्यूशन भी उसकी वजह से हो रहा है. बट ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इनफ्लेमेबल, तो इसके अंदर आप कोई भी समझ लो, आपने कोई एक प्लास्टिक की कैरी बैग लिया है जो बेसिकली पॉलिथीन से होती है, तो पॉलिथीन अगर आप जलाओगे तो क्या होगा, इट विल मेल्ट फर्स्ट. वो सबसे पहले तो मेल्ट होता है, एंड ऑन द फर्दर हीटिंग, जैसे आप उसको कंटिन्यूसली हीटिंग करते रहोगे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट टू बर्न. वो तब क्या हो जाएगा, बर्न करना स्टार्ट कर देगा. सो प्लास्टिक जो होता है वो इनफ्लेमेबल भी होते हैं, बट मेटल कैन नॉट, बिकॉज ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है इनफ्लेमेबल. मेटल जो है वो जल्दी नहीं जलेंगे, बिकॉज मेटल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं. So metals are not burning there on such temperatures. But if we are putting some inflammable substances which are made from the plastic,
inflammable articles which are made from the plastic near to the fire, then after some time they will be get affected from it, right? वो fire से melt हो जाएंगे, and after melting, if we are continuously or further heat it, so what will happen? They will burn. Okay, yeah, very good. Now see, next is soluble. Next जो property है वो क्या है? Soluble property है. That means ये जो plastics होते हैं, they are soluble. Basically acrylic we have learned about it, right? Acrylic जो होता है, acrylic is the type of plastic which is soluble in water as well as we can say, and उसकी वजह से हमें emulsion जो gels मिलते हैं ना, emulsion gels, that means due to this property of the solubility, some plastics like the acrylic can be added to the colors. वो उससे पेंट्स बनते हैं. That's why you know that अगर वो पेंट में अगर मिक्स हो जाए तो आफ्टर ड्राइंग जब वो पेंट सूख जाते हैं, so we know the properties of plastic, they are water resistant है, weather resistant है. मतलब उन कलर्स को अगर आप दीवार पर लगाओगे, उसको पेंट करोगे वॉल पर, so it will prevent the effect of atmosphere, right? या एक्रेलिक कलर भी हम ब्रिंग कर रहे हैं, यू नो दैट वो एक्रेलिक कलर जो आप पेंटिंग में यूज कर रहे हो, बेसिकली द एक्रेलिक पेंट्स आर अवेलेबल इन टू द मार्केट नाउअडेज, है ना? तो उसमें क्या हो रहा है कि अब आप वॉल को अगर वो कलर दे रहे हो तो आपकी जो वॉल्स है वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब नहीं करेगी, डस्ट को उसके ऊपर सेटल नहीं होने देगी. व्हाई? यू नो, बिकॉज ये जो एक्रेलिक होता है इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, राइट? एक सिंथेटिक है. वो अगर वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक पर कोई भी असर वेदर का, हमने देखा है वेदर रेजिस्टेंट है प्लास्टिक, राइट? तो उस पर कोई भी ह्यूमिडिटी या हीट का या कोल्ड का कोई भी असर नहीं होगा. सो योर हाउस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट, वी कैन से. तो एक्रिलिक जो होते हैं दे आर सॉल्युबल एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर forming the metallic color format. Okay, now see, next and the last property of the plastic is that can be blend. Okay, this property is not given book, but we can see that this is also the property of the plastic. What? Plastic can be blend, matlab we can blend the plastics to the natural substances as well, you know, because we know that. So why we can do that? Because to overcome the property of plastic, that plastics are poor moisture observer we can say, मतलब वो absorb नहीं करते ना moisture को, right? Even for example you know that जो नायलॉन से या ट्रेलिन से कपड़े बने होते हैं, राइट? वो कपड़े जो होते हैं वो हम नहीं पहन रहे विंटर सीजन, सॉरी समर सीजन में. व्हाई? बिकॉज वो जो क्लोथ्स होते हैं दे आर नॉट कैपेबल टू एब्सॉर्ब द स्वेट, राइट? वो स्वेट को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव द लेस प्रॉपर्टी टू एब्सॉर्ब द वाटर, राइट? एब्सॉर्ब द मॉइस्चर. सो दैट्स व्हाई वी कैन से वी आर यूजिंग द ब्लेंडेड क्लोथ्स देयर. अभी ब्लेंडेड क्या होते हैं? वी हैव लर्न अबाउट द पॉलिस्टर, आई थिंक, है ना? पॉलिस्टर के बारे में हम सीख चुके कि पॉलिस्टर कैन बी ब्लेंड टू द कॉटन, वूल एंड सिल्क. सच नेचुरल फाइबर्स के साथ में हम पॉलिस्टर को क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं. So you know, yes, we have learned that whenever we are mixing that polyester with the cotton, so it forms the polycot there. And polycot जो होगा तो कॉटन की प्रॉपर्टी क्या है? कॉटन क्लोथ्स. Why we are using the cotton clothes in basically in summer? Because they are the sweat absorber. मतलब वो अच्छे से moisture को absorb कर लेते हैं, right? So this will prevent us from getting any skin infections there in the summer season. So we can say that's why ये जो polycot होता है, which is the combination of polyester and cotton that we are using there, right? Then if we are using that, if we are mixing that, if we are blending that polyester to the silk, then it will form as the polysilk. Then whenever we are mixing or blending that polyester with the wool, then it will form the polywool there. मतलब ये जो polywool, polycot, polysilk जो है ये हमारे blended किए हुए फाइबर से. So we can say that plastics are easily blendable with the other fibers, basically with the naturals, right? And also we know that they are also blend with the glass. That's why we have a fiberglass there, right? So ये भी कुछ properties उसकी हम बोल सकते हैं. Yeah. So these all are the properties of the plastics are here, and I think these are very well understood to you now. Any questions over there? Okay. Then now we will start the next point of the chapter, that is called as the disadvantages and the problems which are associated with the plastics. You know that अभी इसमें से आप बहुत सारी प्रॉपर्टी देख सकते हो, जैसे कि ये वेदर रेजिस्टेंट है. सो दिस प्रॉपर्टी मे बी प्रूव यूजफुल और हार्मफुल एज वेल. यू नो, ये यूजफुल इसलिए है, दैट मींस दिस विल बी द ड्यूरेबल, बट उसका हार्मफुल क्या होगा? उसका एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज क्या होगा? इट इज नॉट डिग्रेडेबल, मतलब वो वेस्ट एज इट इज रहेगा, वो नेचुरल मतलब कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होने वाला, राइट? है ना? तो ये एक उसका एक डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं. या इट विल गेट नेवर डिकम्पोज्ड, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा. सो हम ये कह सकते हैं कि वेदर रेजिस्टेंट इज आल्सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, राइट? उसका एक बैड इफेक्ट भी है.
समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में? ये एक सिंगल प्रॉपर्टी वी कैन कन्वर्ट इनटू द बोथ वेज, राइट? यूजफुल और हार्मफुल, राइट? Yeah. Then see, the next some points are given there, so we will learn them one by one now. So I'm going to learn read the first point given there. So plastic is poor absorber of moisture, right? Moisture absorber nahi hote, and that's why the clothes made from this plastic are not wearable into this summer season. ये एक उसका bad effect है, as they are not absorbing the moisture. ये उसका bad effect है. Then just a minute. Yeah, and ये उसका बैड इफेक्ट्स होने के कारण दिस प्लास्टिक्स कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग द गारमेंट्स, मतलब क्लोथ्स बनाने के लिए हम उसका यूज नहीं कर सकते, राइट? नाउ सी, नेक्स्ट है प्लास्टिक में मेल्ट ऑन हीटिंग एंड कैच द फायर फॉर द फायर. जस्ट अ मिनट. Yeah. So as we have learned that these plastics are what? They are inflammable. As these plastics are inflammable, so we can say plastics cannot be heated too much. हम उनको ज्यादा हीट नहीं कर सकते. As we are heating them continuously, then what will happen? They will melt, and on the further heating, they will catch the fire. So that's why we cannot use the plastics articles wherever we are working with the fire. Got it? So this is also the disadvantage of the plastic, because instead of plastic, what we can use there? We can use some metals there, right? Metals use कर सकते हैं कि metals का boiling point और melting point ज्यादा high होता है, so they will not melt and burn there. That's why ये plastic जो है, ये इस बारे में क्या है? They are disadvantageable. Now see, next disadvantage or the problem related to the plastic is there. That is, yeah, such plastics, whenever they are, as they are inflammable, so whenever we are burning the things of plastics or articles of articles which are made from the plastics, so that time what will happen? On burning, they will release some poisonous gases from them. बहुत सारे poisonous gases वो उनसे release कर देंगे, and which will be harmful to the atmosphere as well. They will kill some atmospheric life, as well as they will affect some organisms which are living on the land as well, from the including the plants and animals. As you know that air pollution is causing the bad effects on all types of living things are there. So in the same way, this because ये जो है एक major pollutant भी है, प्लास्टिक जो है एक मेजर पॉल्यूटेंट है एयर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का, मतलब सबसे हार्मफुल है. ओके, या देन नेक्स्ट इज देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल. एक आपको वर्ड हाईलाइटेड करके दिया है इन द बुक, यू कैन सी देयर दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो ये इससे तो बहुत सारे टॉपिक जो है रिलेटेड है. एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल द प्लास्टिक्स विच वी आर जस्ट थ्रोइंग ऑन द रोड साइड्स. जो कुछ भी रोड साइड पर हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, वी आर जस्ट टेकिंग द स्नैक्स, राइट? स्नैक्स खा रहे हैं, कोई भी चीज करते हैं तो प्लास्टिक कैरी बैग जो होते हैं. फॉर एग्जांपल मोस्टली व्हेनेवर वी आर इन द ट्रैवल, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग दैट ट्रैवल व्हाट वी आर डूइंग देयर? Basically we are taking so much snacks, and as we are eating that snacks, what we are doing with that wrappers of that snacks? What we are doing? We are throwing it just outside the vehicle, right? जो कुछ भी vehicle होगा, whenever we are traveling through the bus or train, we are just throwing that outside it. Okay, not through the plane. प्लेन में हम ऐसा नहीं कर सकते. Now see, जो रेलवेज होती है या फिर मतलब ट्रेन होती है या फिर जो बस से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली उन रैपर्स को फेंक देते हैं, एंड दैट ऑल रैपर्स आर गेटिंग कलेक्टेड on the roadside, and whenever it will rain, that plastic which is collected or gathered there, so it will flows into the drainage systems and it will block that. And due to that, what is happening? The percolation property of the soil is, yeah, we can say yes. Blockage of drains, मतलब जो drains होते हैं वो block हो जाते हैं, and due to that in the cities basically the peoples are facing the floods, right? वो फ्लड्स को फेस कर रहे हैं. इवन दैट वी कैन से, जब ये प्लास्टिक इस तरह से सॉइल में कलेक्ट हो जाता है, एज इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो डिकम्पोज नहीं होने वाला, सो इट विल स्टे कलेक्टेड देयर, एंड वो एक उसकी लेयर बना लेगा, एंड ड्यू टू दैट लेयर व्हाट विल हैपन? द रेन वाटर विल नॉट सिप्स इनटू द ग्राउंड, मतलब सॉइल की या ग्राउंड की जो पर्कुलेशन प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ लेस ग्राउंड वाटर लेवल देयर नाउ. Because all the water which is falling on the earth as a rain, that water is just flowing and collected into the seas through the rivers. वो सब sea में चला जा रहा है, and that's why we are not having a too much water inside the ground nowadays. Why? Because collection of such plastic layer there. वो क्या कर रहा है? पर्कुलेशन प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करा दे रहा है. डिक्रीज कर रहा है मतलब पर्कुलेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि वाटर जमीन में जा ही नहीं पा रहा है ना, वो नीचे तक जा ही नहीं रहा है,
सब पानी जो है वो प्लास्टिक की वजह से ऊपर से फ्लो हो जा रहा है और वो रिवर्स के थ्रू डायरेक्टली सी में जा रहा है, सो इट इज अनयूजेबल फॉर अस नाउअडेज। ओके, तो इस तरह से कुछ हो रहा है वहां पर। सो वी कैन से दिस इज द वेरी बैड प्रॉपर्टी दैट प्लास्टिक इज गेटिंग कलेक्टेड ऑन द रोड साइड एंड ऑन द लैंड, राइट? गॉट इट? या यू नो दैट, एंड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम है जो कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो साइंटिस्ट ने बेसिकली, जो साइंटिस्ट होते हैं जिनको कहा जाता है इन्वायरमेंटलिस्ट, मतलब जो इन्वायरमेंट का स्टडी कर रहे हैं या फिर इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व किया जाए, उसका इक्विलिब्रियम किस तरह से मेंटेन किया जाए, उसके बारे में जो लोग स्टडी या फिर एक्टिविटीज करते रहते हैं, उन इन्वायरमेंटलिस्ट ने एक प्लास्टिक ढूंढा है जो कि बायोडिग्रेडेबल होगा। उसको कहा जाता है पॉलीकार्बोनेट। उन्होंने क्या ढूंढा है? पॉलीकार्बोनेट। एक्चुअली ये जो प्लास्टिक है, दिस इज मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक चीजें है जो होती है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऑल्सो कम्स फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, मतलब जो फार्म से, मतलब जो फार्म होता है ना, फार्म में आप देखते हो कि बहुत सारा एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट निकलता है, राइट? तो उनसे उन्होंने एक प्लास्टिक बनाया है जिसका नाम है पॉलीकार्बोनेट। लेकिन जस्ट लर्न अबाउट दिस, ये डिकम्पोज बाय द माइक्रोब्स इनटू इट्स कंपोनेंट। हाँ, इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, यू नो दैट, ये जो पॉलीकार्बोनेट है इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रोब्स बट इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू दी कंपोस्ट। उसका कंपोस्ट नहीं बनेगा। ये जो पॉलीकार्बोनेट होगा वो जिस चीज से बना है ना, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ओरिजिन जो होंगे उससे जो बना है, तो वो प्लांट्स और ओरिजिन फैक्टर, प्लांट और एनिमल फैक्टर जो होंगे वो सब उससे अलग अलग होंगे, बट इट विल नॉट डिकम्पोज। उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, बट वो सेपरेट होगी। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि आपने कहा ये पॉलीस्टीरीन हमारे पास है, देन पॉलीयूरेथीन है, तो ये इनके क्या होगा? इनका डिकम्पोजिशन ही नहीं होने वाला। इनका क्या होने वाला है? डिकम्पोजिशन नहीं होने वाला। बट ये जो आप भी देख रहे हो पॉलीकार्बोनेट, उसका डिकम्पोजिशन होगा, बट उसके जस्ट जो कंपोनेंट्स होंगे, द कंपोनेंट्स विल सेपरेट ओनली, इट विल नॉट गेट कन्वर्ट इनटू द कंपोस्ट। या उसके अलग अलग पीसेस हो जाएंगे, उसके अलग अलग पार्टिकल सब अलग हो जाएंगे। ओके, उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, बट इट विल स्टिल रिमेन द प्लास्टिक देयर। वो प्लास्टिक ही रहेगा। लेकिन जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, ब्लॉकेज वगैरह, वो नहीं होगा ना, बिकॉज इट विल मिक्स इनटू द सॉइल, नॉट गेट कन्वर्ट इनटू द कंपोस्ट। हाँ, लेकिन वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, तो पर्कुलेशन हो सकता है, राइट? अंडरस्टूड? Yeah. Now see, the next disadvantage is given there. That is prevent the percolation of the rainwater. वही same property वापस दी गई है, that I have told you now. Next property is that, हाँ, most affecting thing, or we are observing into the surrounding of us as well. We can say ये जो plastics होते हैं ना, these plastics carry bags we are using, for example, whenever we are purchasing some foods into the plastic, right? जब भी को हम फूड प्लास्टिक से, जैसे कहते को हम बाहर जाए होते हैं या फिर हम क्या करते हैं, फिर फोन आ गया पेरेंट्स का, बेटा बाहर से आते आते आप मिल्क का पैकेट लेके आओ, राइट? तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो कैरी बैग में ऑलरेडी पैक होता है मिल्क, वो लेकर आते हैं, राइट? या फिर आपको कहा जाए कि मार्केट से आप बाहर गए हो तो आप आते आते सब्जी लेकर आओ, यू नो दैट। सो वेन एवर वी आर परचेसिंग सच थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, like the fruits, then vegetables, then milk, everything. You know, for example, some street foods as well. We are purchasing the pav bhajis, right? इडली डोसा या फिर डोसा हम सब घर पे लाते हैं, राइट? तो जब हम इन चीजों को घर को लाते हैं तो बेसिकली वी आर परचेसिंग और ब्रिंगिंग दैट इन द प्लास्टिक कैरी बैग्स, राइट? हम प्लास्टिक में ही उसको ला रहे हैं। तो वो जो प्लास्टिक होता है, बिकॉज बेसिकली यू नो, जिसमें ये फूड जो होता है स्टोर किया जाता है, तो हॉट फूड इज देयर, राइट? बिकॉज आप कोई भी पाव भाजी खरीदोगे या फिर डोसा खरीदोगे तो वो सारी सारी चीजें तो गर्म गर्म ही आप लाओगे ना, राइट? वो सब हॉट होंगी। तो उस हॉट सब्सटेंसेस को, इटेबल सब्सटेंस को अगर आप प्लास्टिक में डालोगे, सो द थिन लेयर ओवर दैट प्लास्टिक विल बी मिक्स इनटू योर फूड। वो फूड में मिक्स होगा, फर्दर इट कैन कॉज कैंसर टू अस। वो हमें कैंसर भी कॉज कर सकता है। सो वी डोंट हैव टू ब्रिंग एनी हॉट फूड स्टफ्स इन दैट, you know, and as well as the foods which are stored for a long time into the plastic carry bags, it is also not good, you know। अगर उसको प्लास्टिक में स्टोर करना होता है तो उस प्लास्टिक को अंदर से, मतलब उसके इनर लाइनिंग को एल्यूमिनियम की कोटिंग होना जरूरी होता है। अगर उसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग हो उस प्लास्टिक को, उसी प्लास्टिक में आपको खाना चाहिए, राइट? तो आपने देखा होगा वो सिल्वर कलर का एक एल्यूमिनियम कलर का वो फॉइल आता है जो बेसिकली बहुत सारे फूड पैकेट्स पर लगा होता है, जो गवर्नमेंट से फूड सप्लाई किया जाता है, राइट? उस पर फॉइल लगा होता है। हैव यू सीन दैट? वो जो प्लास्टिक होता है उसको इनर लाइनिंग से वो फॉइल लगा होता है। तो बेसिकली यू नो,
तो वो उस प्लास्टिक में, मतलब वो एल्यूमिनियम हमारे फूड में मिक्स होगा एंड इट्स अ टाइप ऑफ मिनरल, वो अगर हमारे बॉडी में जा रहा है तो कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं है, उल्टा फायदा ही होने वाला है, राइट। तो इस तरह के प्लास्टिक को हमें यूज करना चाहिए फॉर स्टोरिंग द फूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम। ओके, सो ये कुछ उसका इफेक्ट हमने देखा जो प्लास्टिक का। देन अभी देखो उसका एक दूसरा वाला साइड। अगर आप उस टाइप के प्लास्टिक्स में कुछ, मतलब जो लोकल टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं, अगर आप उन प्लास्टिक्स को क्या कर रहे हो, we are bringing such foodstuffs into that plastics to our home, and after taking that foodstuff from that plastic, what we are doing with that plastic we are throwing to the dustbin, and eventually dustbins are, we are throwing that into the anywhere. For example, any municipalities vehicles are coming nowadays there, right, वो आते हैं अभी, हम उसमें डाल दे रहे हैं, राइट। बट व्हाट दे आर डूइंग विद दैट, they are releasing all the garbage which are collected from our homes to the river side or outside the cities, right, बराबर है। हाँ, सो जस्ट फोकस ऑन दैट, वो जो वहां पर ले जाकर डाल देते हैं, यू नो व्हाट इज हैपनिंग विद दैट, वो जो प्लास्टिक होता है, सो मेनी कैटल्स होते थे ना, बहुत सारे कैटल्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं ऐसे गांव में, राइट, बहुत से लोगों ने इसे छोड़ दिए होते हैं। यू कैन सी दैट ऑन द रोड, इवन वी आर ट्रैवलिंग इन फ्रंट ऑफ द बस स्टैंड्स एंड एवरीवेयर देयर, यू नो, इन अवर विलेजेस एंड सिटीज आल्सो वी कैन सी वो कैटल्स इधर उधर घूम रहे होते हैं। एंड व्हाट दे आर ईटिंग, दे आर वंडरिंग हियर, दे आर ईटिंग समथिंग दे गॉट। ओके, तो आप देख सकते हो जो प्लास्टिक्स हमने यूज किए थे फूड स्टफ्स ब्रिंग करके, तो उस प्लास्टिक्स में उन फूड स्टफ्स की स्मेल लगी होती है, राइट, बिकॉज सारा तो हम उसको धो के नहीं फेंक रहे ना कैरी बैग को, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टेकिंग दैट फूड आउट ऑफ दैट प्लास्टिक एंड वी आर थ्रोइंग इट एज इट इज, राइट। हम उसको धो के फेंक रहे हैं क्या, बिकॉज उसमें सारा जो स्मेल होगा, टेस्ट होगा फूड का, वो उसमें ही रह जा रहा है, राइट। तो उस स्मेल की और टेस्ट की वजह से जो कैटल्स होते हैं ना, दिस कैटल्स आर गेटिंग अट्रैक्ट टुवर्ड दैट प्लास्टिक्स which are thrown outside the cities, as well as we can say you know that जो कुछ भी कॉमन फीस्ट होता है, यू नो दैट, मतलब कोई भी लोग जैसे कि मैरिज सेरेमनी होती है या फिर कोई फनरल प्रोग्राम होता है या फिर कोई फेयरवेल पार्टीज होती है, तो उसमें हम जो जो खाना खाते हैं, नाउ इट इज व्हाट वी आर ईटिंग, ऑन विच टाइप ऑफ प्लेट वी आर ईटिंग, बेसिकली वो जो यू नो दैट जो बनाना लीव्स की तरह आ रहे हैं पेपर ग्रीन कलर के, ऑन दैट बेसिकली द कॉमन पीपल्स आर ईटिंग, राइट, एवरीवन इंक्लूडिंग अस, yeah, so as yes now see, so as we are eating that, and what we are doing with that, वो हम एक तो burn कर रहे हैं, after burning it will cause the air pollution, and if we don't want to cause the air pollution from that, so what we are doing, we are gathering that, collecting that, all the you know that the already used plates are there which are made from such plastics, you know that वो जो banana like हम use कर रहे हैं उस पर भी प्लास्टिक का कोटिंग आता है, have you seen that, have you observed that, प्लास्टिक का कोटिंग आता है उस पर। तो वो प्लास्टिक कोटिंग अगर हम उसको बाहर फेंक दे रहे तो उसमें सारा खाना बचा होता है, बिकॉज ऑल द पीपल्स आर नॉट क्लीनिंग द ऑल फूड, यू नो, उनके लेफ्ट ओवर फूड होता ही होता है खाने पे, तो वो सारा जो खाना होता है उसमें उस प्लास्टिक रैपर में हम रैप करके डायरेक्टली सिटी के बाहर फेंक दे रहे हैं। सो इफ द कैटल्स आर ईटिंग सच प्लेट्स एज वेल, सो व्हाट विल हैपन, दैट प्लास्टिक इज जस्ट कलेक्टिंग इनटू देयर इंटेस्टाइन्स, वो उनके इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो रहा है, और एज वी नो प्लास्टिक इज नॉट डिकम्पोजेबल, मतलब वो डाइजेस्ट भी नहीं होने वाला, सो इट विल कॉज द डेथ ऑफ दैट कैटल्स एज वेल, एंड मेनी कैटल्स आर डाइंग एवरी ईयर ड्यू टू दिस रीजन। इस प्लास्टिक की वजह से बहुत सारे कैटल जो है वो डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं हर साल, यू नो दैट। तो ये भी एक उसका बैड इफेक्ट है प्लास्टिक का, ये प्रॉब्लम से जो प्लास्टिक से एसोसिएटेड है, मतलब रिलेटेड है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। नाउ सी नेक्स्ट वन दैट, हाँ, you know that another thing is that as we have discussed before this also, whenever we are throwing such plastics here and there, so what is happening, that all plastic is eventually getting collected into the water, right, because whenever it rain it is flowing with the water there, right, am I right? So all that water, you know that all that water is just collecting at a particular water body, and that in that water body that plastic is harming to the aquatic life in that water. उस water में जो कुछ भी aquatic life survive कर रही है, whether the fishes are there, different types of crabs are there, and everything is there, you know, कोई भी aquatic life होगी तो उसको उस पर उस प्लास्टिक का उन पर बहुत बड़ा असर हो रहा है, because they are not receiving the proper oxygen in that due to such plastics, and not even they are not receiving the proper sunlight, you know, for example aquatic plants are there, they are not getting the sunlight, so that's why we can say aquatic life पर इस प्लास्टिक के कलेक्शन का बहुत असर हो रहा है, यू नो, सो एंड दैट्स व्हाई बेसिकली वी कैन से जो सी वाटर है वो भी दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, देन रिवर वाटर, डैम वाटर, सारी चीजें हम खराब करते जा रहे हैं ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ दिस प्लास्टिक्स। ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ओनली सम स्पेसिफिक सिचुएशंस वी हैव टू यूज दिस प्लास्टिक्स, यू नो, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, यू नो दैट बेसिकली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक द मुंबई, पुणे,
नागपुर, अगर आप इन सिटीज में अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको वहां पर प्लास्टिक की बैग्स ना देते हुए वो पेपर बैग्स देते हैं, राइट? हैव यू सीन दैट? पेपर बैग्स अवेलेबल है और वो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं दैट पीपल्स, बट इन आवर साइड, इन आवर विलेजेस और इन द नॉर्मल सिटीज वी आर लिविंग हियर, उनमें इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन हम नहीं कर रहे, राइट? तो आपको एक याद रखना चाहिए कि वी हैव टू ऑलवेज, फॉर एग्जांपल नाउअडेज इन सम सिटीज आर देयर, वी आर व्हेनेवर वी आर जस्ट परचेसिंग एनीथिंग फ्रॉम द मॉल्स, तो मॉल्स में भी आपको डिग्रेडेबल बैग्स दिए जाते हैं अभी, राइट? जो जूट से बेसिकली बनी होती है या पेपर से बनी होती है, वो बैग्स आपको दिए जा रहे हैं कि जो कि आप अगर बाहर फेंक भी दो तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, राइट? उस तरह के बैग्स मॉल में भी आज अवेलेबल है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस which we are using to overcome the problems related to the plastic there. So now see, next is there some another different point is given there, measures to reduce the pollutions or the problems related to the plastic. जो कुछ भी प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस किए, वी आर लेफ्ट विद द 2 minutes देयर, सो होल्ड ऑन, वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन दैट व्हाट आई एम टेलिंग कि हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस किए प्लास्टिक से सारे, तो इन प्लास्टिक से हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उससे होने वाला जो बैड इफेक्ट्स है या पॉल्यूशन है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, दैट। तो इसको रोकने के लिए व्हाट वी कैन डू, सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू रिड्यूस, वहां पर 3R मंत्रा यूज किया जाता है। कौन सा वाला? 3R मंत्रा। वो होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस क्या होगा? दैट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक फर्स्ट। हमें सबसे पहले प्लास्टिक का यूज ही रिड्यूस करना है। इफ यू वांट टू बाय द मिल्क, just go from the home, and whenever you are going out from the home for buying the milk, just take a tiffin or any container which is made from the metal there, right? प्लास्टिक कैरी बैग में ना लाते हुए आप कोई मेटल का केस आपके घर से ले जा सकते हो, राइट? या सो दैट, तो इस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना है, रिड्यूस द, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जा रहे हो, राइट? तो ऐसे ही चले जाते हो, we are not bringing the carry bag or the that the wire bags basically from our home. What we are doing, we are just taking the carry bag from that vendors. वो जो वहां पर बैठे होते हैं, जो सब्जी वगैरह लेकर बैठे होते हैं, हम जब उनसे सब्जी वगैरह या कोई वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, जैसे हम खरीदते तो कैरी बैग में लेकर आते हैं, घर पे 4-5 कैरी बैग्स लेकर आते हैं हर दिन। सो वी डोंट हैव टू यूज सच मैनर्स, दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू टेक द wire bags, as well as we can say the bags which are made from the clothes, and then we have to go to purchase the vegetables to the market, right? So this we can do there. So we have to reduce the use of plastic first. तो reduce सबसे पहला R है, then second R is for reuse। मतलब कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, जैसे कि प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो, nowadays that वो ISI मार्क वाले प्लास्टिक आ रहे हैं मार्केट में। अभी बैन लगा था प्लास्टिक पर, उसके बाद वो थोड़े मोटे वाले जो कैरी बैग होते हैं वो अभी मार्केट में आए, राइट? Have you seen that? हाँ, so you can that you can use that carry bag। आप उस कैरी बैग को यूज कर सकते हो। Why? Because they are reusable। वो रीयूज कर सकते हो ना आप उसका। जैसे कि आप देखो, आप बड़े बड़े पॉलिथीन बैग्स लाते हो whenever we are परचेसिंग क्लोथ्स फ्रॉम द क्लोथ शॉप, राइट? जैसे हम शॉपिंग करके लाते हैं तो जो कैरी बैग्स आपको मिल रहे हैं क्लोथ्स के साथ में, दैट यू कैन यूज एंड वी आर यूजिंग दैट, राइट? हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं ना। क्या क्लोथ्स घर पर आने के बाद हम उसको फेंक दे रहे हैं क्या? नो, वी आर यूजिंग दैट again and again। so such plastics which are reusable, we have to use that। that means we have to reuse the plastic which are available to us, मतलब, and we don't have to use the plastic which are not reusable। जैसे कि आप देखते हो वो पॉलिथीन बैग, जब आप सब्जी या कोई पानी पूरी घर पर ला रहे हो, कोई अनदर फूड्स हम बाय कर रहे हैं मार्केट से, जैसे कि पाव भाजी हुआ, तो उसके साथ में आप जब ये कैरी बैग लाते हो, दे आर नॉट रीयूजेबल, राइट? वो रीयूजेबल नहीं होती, एक बार यूज करो तो वो फट जाती है डायरेक्टली, राइट? बहुत ही थीन होती है। सो सच प्लास्टिक्स आर वेरी हार्मफुल टू अवर एनवायरमेंट, बिकॉज वो अगर फट जाती है हम उसको डायरेक्टली फेंक देते हैं। इट इज नॉट usable to us then, so we don't have to use that। so that means we have to reuse the plastics। okay, this is the second R। and what is the third R there? third R होता है recycling। that means for example nowadays you can see that बहुत सारा जो प्लास्टिक होता है, it is collected by some peoples, जो लोग घूमते रहते हैं बड़ा सा थैला लेकर। basically we are observing them on the bus stops or railway stations, right? they are collecting the plastic bottles। जो बिस्लरी की बॉटल हम खरीदते हैं, वाटर बॉटल, मिनरल वाटर की जो बॉटल हम खरीदते हैं, उन बॉटल्स को वो कलेक्ट करते हैं, राइट? और वो बेचते हैं। Have you seen that? So where, yes, तो वो जो बेचा हुआ जो प्लास्टिक होता है, बेसिकली वो कहां पर जाता है? फैक्ट्रीज में जाता है, जहां से वो रिसाइकल होकर आता है, मतलब उनसे और कोई अलग चीज बनाई जाती है, राइट?
तो इस तरह से रिसाइक्लेबल जो प्लास्टिक होगा दैट वी हैव टू यूज, दैट मीन्स द 3 आर देयर, वी हैव टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल द प्लास्टिक, then we will overcome these problems which is related to the plastic there, right? So in this way, today we have learned about the properties of plastics as well as the problems and disadvantages which are associated with the plastic and how to overcome that problems there. So all these things we have learned today. Okay, if you have any question there, then you can ask me. Thanks for watching. If you like this video, then please like, share and subscribe our channel. Thank you.